disaster management paper, Joshi-Mutt example can be given where multiple cracks have occurred in people's homes. This is one of the consequence of increasing urbanization and increasing changing land use pattern in the hilly regions, especially Uttarakhand, which suffers mostly from the disasters. Plan of action of the government is right now to evacuate people as soon as possible, pay monthly rent for the vulnerable people, and to set up a committee to conduct a study of the occurrence of land subsidence and its impact on the Joshimath region. So this plan of action can be quoted or can be discussed in some case studies in ethics also. Civilians being killed in Dangri in Jammu and Kashmir's Rajouri. Village defense committees were used in 1995 in 10 districts. इसमें armed volunteers होते थे. This was disbanded because of their high-handedness. अभी इनके recommission का fresh demand हो रहा है. An example to be quoted somewhere. International law में crisis के लिए different scholars यहाँ पर mentioned है which can be quoted to make answers more scholarly. एक है प्रोफेसर हिलरी चार्ल्सवर्थ, अभी आईसीजे में जज हैं. वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज अ डिसिप्लिन ऑफ क्राइसिस, डबल कोट्स में डायरेक्टली कोट इन आंसर्स. सी राजा मोहन, यूनिपोलर मूवमेंट जो था 1990s के बाद, कोल्ड वॉर के बाद जब यूएस हेजेमनी था, यूनिपोलर मूवमेंट को उस पीरियड को रिलेटिव हार्मनी कहते हैं. राल्फ वाइल्ड कहते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद का जो पीरियड था जो रिलेटिव हार्मनी का था, उसमें यूएस ने अलग अलग जगह पे बॉम्बिंग की, जैसे इराक, नेटो ने कोसोवो में बॉम्ब गिराया, वेस्टर्न फोर्सेस ने इराक को इन्वेड किया. इन मिलिट्री एक्शंस को ऐसा इंटरनेशनल रिस्पांस नहीं मिला जो अभी रशिया को झेलना पड़ रहा है. रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को जैसा रिस्पांस मिला है. तो दिस वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ राल्फ वाइल्ड. हु इज राल्फ वाइल्ड? Ralph Wilde is an academic and expert in public international law. He is a faculty member at University College London. इसके अलावा right now we have entered in multipolar world. Reality अभी का ये है dwindling of the liberal and capitalist West and the rise of the autocratic China and expansionist Russia. This is the reality of today. यहाँ पर एक phrase यूज किया है ऑथर ने, set the cat among the pigeons. इसका मीनिंग होता है say or do something that is likely to cause trouble or controversy. Put the cat among the pigeons. Next है James Crawford is again another scholar, argued that the crisis occurred in international law because of the absence of any constitutional order other than constitutional order of states. इंडियन नेवी भी ड्रोन्स अब अपने इंडक्ट करने वाली है आफ्टर इंडियन आर्मी अनाउंस द इंडक्शन ऑफ फॉर्म ड्रोन्स. एक प्रेडेटर ड्रोन है यूएस यूज करता है. अब केवल ड्रोन्स जो है वो एरियल व्हीकल्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, बट सिमिलर एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी जिसमें अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स डेवलप हो रहे हैं और वो जनरली वॉरिंग एबिलिटीज़ के नहीं होते हैं, बट यूएसए उसको डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है जिसमें underwater autonomous platforms will be there which will be powered by AI and they will be having war fighting abilities. अब इसमें कुछ ethical paradox भी हैं. This can be a question in ethics जिसमें AI powered combat systems के ऊपर ethical dilemmas क्या होते हैं या ethical paradox क्या है. तो उसके against ये है कि AI compromises the control, safety and accountability of weapon systems. It also enhances the risk of shared liability between network systems when weapon algorithm are sourced from abroad. इंडिया जनरेटेड है नहीं, हम लोग कोई भी एल्गोरिदम है वो जो डेवलप किया है उस एआई एल्गोरिदम को वही उसके पीछे का रीजनिंग या कुछ समझ सकता है, अदरवाइज इट विल बी अ ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम फॉर इंडिया. नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है एआई इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्री डिस्पोजिशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ डेटा. अगर कुछ एरर होता है ऑटोनोमस सिस्टम से तो देयर विल बी नो वन टू बी हेल्ड अकाउंटेबल. एंड करेंटली ये है कि ह्यूमंस जब वॉर लड़ते हैं तो देयर आर स्टिल रूल्स. फॉर एग्जांपल प्रिजनर ऑफ वॉर को कैसे ट्रीट करना है, सिविलियंस को कैसे ट्रीट करना, देयर आर सर्टेन रूल्स अंडर विच ह्यूमंस फाइट देयर वॉर्स.
but AI will not understand such rules. कभी कभी ये होगा कि AI will not have the sufficient amount of data to execute some commands or fire or use the weapon system, but it will not even recognize that it needs more information. This is more problematic. इसमें से 4-5 पॉइंट्स मिल जाएंगे AI वाले क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। एंशियंट पोलो को मणिपुर में ओरिजिन हुआ है ऐसा माना जाता है। उसका नाम था सगोल कांगजेई। सगोल कांगजेई। मॉडर्न डे पोलो गेम ओरिजिनेटेड इन मणिपुर। इसको खेला जाता था मणिपुर पोनी के ऊपर। ये स्टैच्यू अनवेल हुआ है तो दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़। अब मणिपुर पोनी के ऊपर न्यूज़ ये है कि इट इज़ रिड्यूसिंग इन नंबर, कंजर्वेशन की ज़रूरत है, और उसका हिस्ट्री या ओरिजिन लोगों को अभी तक नहीं पता है। कुछ कहते हैं तिब्बत से आए थे, कुछ कहते हैं कि मंगोल इन्वेजन के टाइम पे जो हॉर्सेस लाए थे उन वो लोग इसके एंसेस्टर्स है, एंड अदर थिंग्स लाइक दैट डज नॉट मैटर। डिलिमिटेशन असम में हो रहा है। कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, इन एरियाज़ में डिलिमिटेशन 2008 में नहीं हुआ था। इन जगहों को छोड़ दिया गया था। तो इनमें से जम्मू एंड कश्मीर का अभी 2022 में कंप्लीट किया गया, और आसाम में अभी शुरुआत हुई है। बाकी जगहों पर भी किया जाएगा बट बाद में। अभी इन 2 जगहों पर हो रहा है, जिसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का इंडियन कैंपसेस खुलने का रूल है। उसके ऊपर 2 आर्टिकल्स हैं। ब्रीफली ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा था कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में फैसिलिटेट किया जाएगा यूजीसी के रूल्स के हिसाब से टॉप 500, और जो लोग इस ग्लोबल रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दोज यूनिवर्सिटीज़ मस्ट बी रेप्यूटेड इन देयर कंट्रीज़। ये एक क्लॉज है। अब कुछ डेटा यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टूडेंट्स विथ मोर देन 4.5 लाख स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रो में ये है कि FDI आएगा हायर एजुकेशन में, अपडेटेड करिकुलम आएगा। उसका क्रिटिसिज्म ये है कि ऑफशोर कैंपसेस जनरली ये देखा गया है कि आर नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड सेट बाय द पेरेंट यूनिवर्सिटीज़। वहाँ पर एनेबलिंग क्लाइमेट नहीं होता है, एंड मोस्टली अगर ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट के करिकुलम आएंगे तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का बात है वो नहीं हो पाएगा अगर केवल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एजुकेशन ऑफर करेंगी ये यूनिवर्सिटीज़। तो